कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, बिकॉज इस डिसीजन पे डिपेंड होता है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो. नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. The question arises, then what is capital structure? So capital structure refers to proportion of capital to be raised from different sources that are shares, debentures or bonds. किस proportion में shares issue करने हैं market में, किस proportion में debentures and किस proportion में equity. So raising of funds by equity, by preference, by debentures, it refers to capital structure. Let's suppose एक कंपनी का जो नॉमिनल कैपिटल है दैट इज 10 लाख, यानी वो टोटल 10 लाख ही रेज कर सकते हैं एज पर देयर डॉक्यूमेंट्स. तो इसमें से दे हैव डिसाइडेड दैट 10 लाख में से इक्विटी शेयर्स वो 5 लाख के रेज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वो 3 लाख के रेज करेंगे एंड डिबेंचर्स वो 2 लाख के रेज करेंगे. When this proportion is decided, that is known as capital structure. So we can say capital structure is a ratio between equity and the debt. Basically ये दोनों डिसीजन होने ज्यादा जरूरी है. कितने इक्विटी, कितना डेप्ट. Why not preference shares? Because preference shares पे जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो फिक्स्ड होता है, और जो भी बच जाएगा वो अल्टीमेटली जाना है इक्विटी कैपिटल को. सो इन दोनों की जो रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए, वो सर्टन होनी चाहिए. सो कैपिटल स्ट्रक्चर हैज बीन डिफाइंड एज financial plan according to which all assets of the company are financed. This capital is supplied by long-term and short-term borrowings, the sale of preferred common equity stocks, and reinvestment of earnings. So according to Wessel, capital structure is frequently used to indicate the long-term sources of the funds employed in a business enterprise. Actual में capital structure refers to the long-term sources. फंड्स कंपनी रेज कर सकती है शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी. शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं जैसे क्रेडिटर से, है ना, लोन लिया, क्रेडिटर से उधार लिया, वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं. लेकिन जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन पर्टिकुलरली इट रेफर्स टू ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. दीज लॉन्ग टर्म रेफर्स टू डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल रिजर्व्स, इक्विटी शेयर्स, सरप्लसेस, एटसेट्रा. So we can define capital structure refers to the combination of the debt and equity capital which a firm uses to finance its long-term operations. Capital refers to the permanent or long-term financial arrangement, and capital structure represents the proportion relationship between the various long-term sources. जब हम word capital की बात करते हैं, कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट, लेकिन जब कैपिटल के साथ वर्ड स्ट्रक्चर लग जाता है देन इट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ दीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेस. डायग्राम देखते हैं. नाउ इस डायग्राम में कुछ एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज हाई गियर्ड स्ट्रक्चर एंड लो गियर्ड स्ट्रक्चर. नाउ वी नीड टू नो व्हाट दिस gearing means. For assuming the leverage, we can use gearing ratio, the gearing ratio of debt to equity. Now, gearing ratios are used to assess the firm's level of financial risk. Now, question यहाँ पे ये राइज होता है, what is leverage and what is gearing ratio? Now, the word leverage means leverage से ही connected है financial and operative leverage. So, very important for a company to decide upon the leverage. Leverage is an investment strategy. It is an investment strategy of using borrowed money. In simple words, it refers to the amount of debt a firm uses to finance the assets. Capital structure, we have read that it is a combination of equity and debt. Capital structure is a combination of debt and equity. इसमें से
कितना प्रोपोर्शन डेप्ट लेना है, यानी अमाउंट ऑफ डेप्ट से कितना फाइनेंस इकट्ठा करना है। जब हम वर्ड डेप्ट की बात करते हैं, वी आर रेफरिंग टू बोरोड मनी, क्योंकि ये बोरिंग है कंपनी के लिए। सो दैट इज नोन एज लिवरेज। ये लेवरेज का प्रोपोर्शन डिसाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बोरिंग्स बहुत ज्यादा कर ली है और इक्विटी कम है, तो भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर आइडल नहीं होगा कंपनी के लिए। दूसरी तरफ आपकी इक्विटी ज्यादा है और डेप्ट बोरिंग्स कम है, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर सही नहीं होगा कंपनी के लिए। तो एक आइडियल लिवरेज का होना जरूरी है ना। ये कितना लिवरेज, लिवरेज कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली लिवरेज आइडल होगा तभी आगे ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज डिसाइड होगा। सो उसके लिए वी यूज गियरिंग रेशियो। नाउ व्हाट डज गियरिंग रेशियो रेफर्स टू? दिस विल बी क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम। फर्म ए के पास जो टोटल एसेट्स हैं, वो टोटल एसेट्स में डेप्ट की रेशियो ज्यादा है, इक्विटी की रेशियो कम है, तब हम कहेंगे ये हाई गियर्ड स्ट्रक्चर है। फर्म बी में टोटल एसेट्स में इक्विटी ज्यादा है एंड डेप्ट कम है, तब हम कहेंगे लो गियर्ड स्ट्रक्चर है। सो एक आइडल लिवरेज के लिए आइडल गियरिंग रेशियो होना जरूरी है। गियरिंग रेशियो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। When we say capital structure is the combination of debt and equity. Now question arises, how much proportion of debt and equity? So that how much proportion is decided by the word leverage. Leverage means the proportion of the borrowed funds. और ये आइडल होना जरूरी है, ये रेशो डेप्ट और इक्विटी की आइडल होना जरूरी है। जब डेप्ट ज्यादा हो गया है कंपनी का, बोरोड फंड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, दैट कैन पॉइंट आउट टुवर्ड्स द insolvency situation, bankrupt situation of the firm. तो ये high geared structure है. Whenever the word high geared means immediately it is pointing कि debt कंपनी का ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक कंपनी low geared है, that means उसका debt कम है और equity ज्यादा है, equity funds ज्यादा है, तो ये भी ideal situation नहीं है। For ideal capital structure, it is very important that there should be a level of gearing, there should be a proportion of leverage.